Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So we are continuing our president topic and we are discussing about the legislative powers. ठीक है? So the first legislative powers is regarding the houses of parliament. ठीक है? So there are two powers related to it. First is the president can summon the sitting of the parliament. ठीक है? It means the parliament is not in session. The parliament is in recession. ठीक है? ये वो फेज चल रहा है जब पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग्स होल्ड नहीं कर रही है. अंडरस्टूड? बट एज यू नो, बाय कन्वेंशन and not by constitution, by convention, in every by convention there are three regular sessions of the parliament. ठीक है? So this is by convention, but in our constitution this particular clause is given and this is not given. So what does our constitution say? Constitution says that between two sittings of the parliament the time period will not exceed 6 months. दो सिटिंग्स पार्लियामेंट की, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड can't be more than 6 months. So that's why we have chosen a convention that in a particular year 3 regular sessions or sittings of the parliament will took place. ठीक है? So अगर ये बुलानी है आपको मीटिंग, टू कॉल दिस मीटिंग्स, द प्रेसिडेंट हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज टू प्रोरोग अ सेशन. इट मीन्स टू एंड अ ऑनगोइंग सेशन. ठीक है? मोर ओवर दिस जॉइंट सिटिंग प्रोविजन, इट मीन्स इफ एन इन द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल, मान लीजिए वन ऑफ द हाउस इज क्रिएटिंग अ स्टेलमेट. इट मीन्स राज्यसभा से एक ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा है, सो इट इज नॉट गेटिंग पास्ड इन द राज्यसभा, या वाइस वर्सा. राज्यसभा वाले मेंबर्स ने पास कर दिया बट इन लोकसभा द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इट. ठीक है? सो इन दिस पर्टिकुलर डेडलॉक द प्रेसिडेंट can call joint sitting of the houses and this particular joint sitting is presided by the speaker of the Lok Sabha, the lower house. ठीक है? So this particular joint sitting, the calling of this joint sitting is also lies with president. Address. The president has the power to address both the houses in two matters. First is fresh elections of the Lok Sabha has been took place. जनरल असेंबली के अभी इलेक्शंस हुए. So the first sitting that will be held after fresh elections of जनरल असेंबली, इसमें प्रेसिडेंट स्पीच देंगे. ठीक है? The president can address this first sitting of the house. The other case is first year first session in every year. And what is the first session? According to convention, the budget session. So in budget session the president has the power to address the houses of the parliament. So in these two cases the president can address the house of the parliament. The first sitting after the fresh elections or the general elections took place, 5 साल के बाद जो होता है, and the first session or the first sitting in every year. ठीक है? Then a presiding
officers nomination power has been given to president. प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होता है भाई? हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एक में 550 है, एक में 250 है। सो वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम वाइल डिबेटिंग द पब्लिक बिल्स, ठीक है? क्योंकि कितने भी आप अडल्ट हो जाओ, बड़े हो जाओ, हम हैं तो ह्यूमंस ही, ठीक है? तो भेड़चाल करेंगे ही। सो वी वॉन्ट अ कोऑर्डिनेटर अमॉन्ग दिस बोथ द हाउसेज। सो उन्हीं को बोला जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इट इज़ लाइक द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यही सबको टर्न बाय टर्न मौका देंगे टू पुट देयर केसेस फॉरवर्ड इन द फ्लोर ऑफ द हाउसेज। So in the Lok Sabha we have speaker and deputy speaker, and in the Rajya Sabha we have chairman and vice chairman, ठीक है? Sorry, deputy chairman. So these all are called presiding officers. Lok Sabha speaker, deputy speaker, Rajya Sabha chairman and deputy chairman. So if the position of the presiding officers became vacant, they are not absent, they are vacant. It means their kursis, their positions are khali, empty in the houses of the Lok Sabha. So in that particular matter, president can nominate any member of each houses respectively, ठीक है? लोक सभा का कोई भी मेंबर नॉमिनेट कर देंगे टू बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा का कर देंगे टू बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अंडरस्टूड? बट दिस इज द केस ऑफ वैकेंसी इन द पोजिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड नॉट द एब्सेंसी। वैकेंसी पता है ना आपको? ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, द पर्टिकुलर पोजिशन और चेयर ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन हैज बिकम वेकेंट। एब्सेंसी क्या होती है? वो बीमार पड़े तो घर पे है, ठीक है? अभी अगर उनको बहुत ही अर्जेंटली बुलाया जाएगा तो आ जाएंगे कुछ भी करके, तो उसको बोलते हैं एब्सेंसी, ठीक है? तो दिस क्लॉज इज अबाउट वेकेंसी। नॉमिनेशन, जो दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट कर रहे हैं, दैट क्लॉज हैज बीन रिपील्ड, बट द 12 नॉमिनेशन इन द राज्यसभा, ठीक है, किस किस पे करते हैं? ग्राउंड्स होते हैं कुछ, जैसे शायद से आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल सर्विस, एंड वन अदर ग्राउंड इज ऑल्सो देयर, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। सो इन 4 ग्राउंड्स this our president can nominate 12 members in the राज्य सभा। इन कोई भी फील्ड्स में से हो सकते हैं। और यही पावर गवर्नर में कैसे डिफरेंट है? गवर्नर में वहां एक और ग्राउंड आ जाता है, डेट इज हु इज द लीडर और हेड ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो वन पर्टिकुलर अनदर ग्राउंड will be added to these 4 when there is a case of governor. It means governor can nominate members in the legislative council, ठीक है? तो legislative council, the upper house of the state legislature, तो उसमें ये 5 ग्राउंड्स हो जाते हैं, ठीक है? Bills, there are particular bills which require prior permission of president to be introduced in the houses. एग्जाम्पल क्या है इसके? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में पढ़ा था एक एग्जाम्पल, आर्टिकल 3 रीएडजस्टमेंट। देन मनी बिल, इफ वी वांट टू प्रेजेंट मनी बिल इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सो द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। सो सच काइंड ऑफ बिल्स रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अंडर आर्टिकल 1, 2, 3, the president can promulgate ordinances. What are ordinances? This is the kind of a parallel power. कैसी parallel power? Legislative power. किसके parallel में? Parliament के parallel में. It means this is another way to pass laws, ठीक है? और bypass parliamentary procedure. But as this is the parallel way, तो कुछ तो obstructions होंगी, नहीं तो पार्लियामेंट क्यों है अगर यही वे यूज कर सकते हैं? इफ द प्रेसिडेंट हैज ऑल द अपॉर्चुनिटी, ऑल द पावर्स टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज एंड बाईपास द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, देन व्हाट इज द नीड ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस? सो द मैक्सिमम टाइम पीरियड
of the ordinance is 6 months plus 6 weeks. अब ये है क्यों ये 6 months और 6 weeks, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं. You see, when the president is promulgating ordinances, so one condition has to satisfy. The parliament is in recess. It means there is no sitting ongoing of the parliament. ठीक है. या तो one of the houses is not in the active condition. ठीक है. It means मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई और राज्यसभा की सिटिंग चल रही है. So in that particular case, the parliament can't pass a single bill. क्यों? क्योंकि दोनों हाउसेस की रजामंदी चाहिए. So in both these cases, the president comes into play, and if the president oversees that there is a imminent emergency situation, in that particular case, the president is empowered to promulgate ordinances under Article 1 to 3. ठीक है. मैंने कंडीशंस बता दी कब बस ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकता है वो. नाउ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन, और मान लीजिए कल ही हाउस सेशन से हटे हैं. ठीक है. yesterday only there is a recess of parliament. So it means by the law of the constitution, in 2 sessions there can't be a gap more than 6 months. So maximum time period that the parliament will be in recess is 6 months. Understood? And the constitution is saying this particular ordinance that is promulgated by the president should be ratified by the both houses of the parliament within 6 weeks of the reconstitution of the parliament. It means whenever the parliament will sit, in 6 weeks from the date of sitting, this particular ordinance have to be ratified by both the houses, or this ordinance will be destroyed or negated. So that's why the maximum period of ordinance is 6 months plus 6 weeks. And this particular question has been asked many times in the UPSC previous year examinations. This particular thing is also being asked in the previous year of UPSC examination. I think one time in CDS और एक बार तो सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछा गया है. So the reports of the Comptroller and Auditor General, which is also known as CAG, UPSC Union Public Service Commission, and Finance Commission under Article 280. Finance Commission is under Article 280. So the reports of all 3 bodies will be put before the president, and president causes it to lay down in the floor of the parliament. It means these 3 will present their report to the president first. ठीक है. Now when a particular bill is presented before the president, कैसे? जब both the houses of the parliament has ratified the bill, and this particular bill, the last stage is the assent or the signature of the president. So when this particular bill, which has been passed by both the houses of the parliament, is presented before the president, so the president has some choices. भाई हेड है, कुछ तो choices होंगी. Accepts or give his assent to the bill. So the bill has been made an act, and this particular process is called enactment. I have told you. He can withhold his assent. It means उसको वो प्रेसिडेंट के पास जब ये बिल हम लेके गए, उन्होंने बोला भाई अभी बिजी हूँ मैं, अब इसको यहाँ रख दो, मैं देखता हूँ इसको. So this is nothing but withholding his assent. The third one is president can temporarily reject this bill and send it again to the houses of parliament for the reconsideration. ठीक है. So the bill has been sent back to the houses of the parliament for the reconsideration. ठीक है. Now there are 2 sides of this. अभी हम थोड़ा आगे ही पढ़ेंगे, पर इसको यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए. ये मैंने बिल बताया नहीं आपको कि स्टेट लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का है. सो इफ दिस बिल हैज बीन ओरिजिनेटेड इन पार्लियामेंट,
And after the ratification of both the houses of the parliament, the bill has been presented before president. So the president have these three choices, है ना. एंड इफ ये तो सेम है, बट ये रिजेक्शन वाली और रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज वाली जो कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. पार्लियामेंट इज ओवरऑल पावरफुल इन अवर इंडियन पॉलिटी, ये आप ध्यान रखना. सो जब ये पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए बिल आएगा तो पार्लियामेंट देखेगी और पार्लियामेंट में गुस्सा आएगा कि भाई आफ्टर सो मच मेहनत वी हैव पास दिस पर्टिकुलर बिल, ठीक है, बट द प्रेसिडेंट साहब हैज सेंड इट बैक अगेन फॉर आवर रिकंसिडरेशन, but we want the provisions of this particular bill as it is, and we are sending this bill again to the president. So now the president has a constitutional duty to give his assent to the same bill. Understood? So in the second time the president can't reject the bill or send it back towards the parliament. ठीक है. Now a state legislature bill is presented before governor for his assent, है ना, federal structure. So the governor also has these three things, these three choices with him, and the fourth choice which the governor has apart from these three is withholding his assent or withholding the bill for the consideration of the president. It means governor can withhold any bill for the consideration of president. ठीक है, मनी बिल नहीं होता और कोई भी बिल हो सकता है. सो नाउ व्हेन द गवर्नर हैज विदहोल्डेड दिस पर्टिकुलर बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तब भी प्रेसिडेंट के पास ये फिर से तीन चॉइसेस आ गई. वो ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है. इसमें भी तीसरी चॉइस है, वो मैंडेटरी है अब हमारे ऊपर. क्या है ये तीसरी चॉइस में फिर से चेंज होगा, ट्रिकरी होगी. स्टेट लेजिस्लेचर इज स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, इंडियन स्टेट, है ना. पार्लियामेंट हैज द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट, बट स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट हैव सो मच पावर दैट इट कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट. सो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन. स्टेट लेजिस्लेचर को गुस्सा आएगा और वो वापस वैसे के वैसे प्रोविजन के साथ प्रेसिडेंट को भेज देगी फिर से. पर प्रेसिडेंट, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द प्रेसिडेंट टू रेटिफाई और गिव हिज असेंट टू दिस बिल. सो ही कैन अगेन सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स और ये सर्कल चलता रहेगा. अंडरस्टूड? सो एब्जॉर्ब दिस. इसमें बस एक बात याद करने वाली है और एक एक्सेप्शन है. मनी बिल इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, द लास्ट ऑप्शंस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो इन द केस ऑफ मनी बिल देर इज एन एक्सेप्शन, नहीं तो इन ऑल द अदर बिल्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज एप्लीकेबल. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. बहुत ही आसान है. कंटिजेंसी फंड, आई थिंक आर्टिकल
267. सो इन पर्टिकुलर आर्टिकल 267 ये एक बार देखना पड़ेगा, और नीचे मैं थोड़ा एक स्क्रिप्ट डाल दूंगा कि दिस इज रॉन्ग. सो इन आर्टिकल 267 द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग पावर टू द पार्लियामेंट दैट डियर पार्लियामेंट आप एक ऐसा फंड बना सकते हो. ठीक है. सो वाया दिस पर्टिकुलर पावर given by the constitution to the parliament, this particular fund has been made contingency fund. ठीक है. And the onus or the responsibility of this contingency fund is with president. ठीक है. और इसकी शायद से 500 करोड़ लिमिट रखी गई है बाय पार्लियामेंट. अंडरस्टूड. ये बाद में आएगा हमारे चैप्टर, पर अभी जितना भी दिमाग के ऊपर था मेरे उतना मैंने बता दिया, और गलत भी हो सकता है तो ठीक है, कोई नहीं, मैं नीचे डाल दूंगा अगर गलत होगा तो. Money bill. So money bill can only be presented before the parliament in the prior assent of the president. We have discussed it. Demand for grants. The government requires money to run this whole machinery, which is the administration of the Indian state. So इसके लिए each ministry wants some फाइनेंस, वांट सम मनी. क्यों? अपने एम्प्लॉयज़ को भी देना पड़ेगा, कुछ प्रिंटिंग हो रहा है उसके लिए आएगा, इतना सब हम जो प्रिंट कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें देना पड़ेगा, तो बहुत सबको देना पड़ेगा. ठीक है. सो ईच मिनिस्ट्री रिक्वायर्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री. ठीक है. So this is nothing but called demand for grants, and president has to approve this demand for grants, तभी हो जाएंगी. ठीक है. And last but not the least, finance commission under article 280. ये तो अभी अब तक आपको याद हो गया होगा. So president is responsible for constitution of this finance commission in every 5 years or before or after, but in general 5 years. तो ये president के हाथ में पावर है. ठीक है. जुडिशियल पावर्स पढ़ लेते हैं. वेरी इजी. पहली क्या होगी? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. दूसरी बताइए. वी विल स्टडी दिस इन पर्टिकुलर जुडिशरी, बट इसका एक सुपरफिशियल व्यू बता देता हूं. प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट की. तो सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन. किसको एडवाइस कर रहा है? प्रेसिडेंट को. कैसी एडवाइस है? अनबाइंडिंग. ठीक है. सो द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज अनबाइंडिंग इन नेचर. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सबके जजेस अपॉइंट भी करता है. सो ऑब्जर्व दिस फर्स्ट. Some military powers. We have 3 number of armed forces: Indian Air Force, Indian Navy, and Indian Air Force, Indian Navy, and Indian Army. So the chiefs of all 3 armed forces will be appointed by none other than president. ठीक है. Moreover, in relation to the military powers, the president can declare war or conclude peace. ठीक है. बट आपको पता है पीछे से पार्लियामेंट को बैकिंग देनी पड़ेगी, नहीं तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर एनी टाइम. क्यों? इंडिविजुअल है ना, कभी भी ऊपर वाला दिमाग घूम सकता है. सो पार्लियामेंट हमेशा पीछे से आ जाएगी, बट दिस इज द ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस ऑल्सो वी हैव पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. वो इसी में आ जाएगा, पार्डनिंग पावर्स भी. ठीक है. कितनी है? 4-5 है ना. कम्यूट, रिप्रीव, रेस्पाइट, पार्डन. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जुडिशियल पावर्स में आ जाएंगी. सो यहाँ भी लिख दीजिए पार्डनिंग पावर्स.
इसमें एक खास बात ये है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्डन, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन एनी केस, एनी इंडिविजुअल, ठीक है, देर इज नो एक्सेप्शन। बट इन कंपैरिजन टू गवर्नर, द गवर्नर कांट पार्डन टू टाइप्स ऑफ punishment. First is court martial and other thing is death sentence. So other pardoning powers will be there with the governor, respite, reprieve, commute, ठीक है। These all powers can be exercised by the governor in the case of death sentence. But the complete pardon can't be given by governor to the particular individual, ठीक है। सो जिसको पनिशमेंट हुई है डेथ सेंटेंस की, उसको कंप्लीट पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर, एंड इन द मैटर ऑफ कोर्ट मार्शल द गवर्नर कांट इंटरफियर। सो दिस इज सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एनी, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल लाओ, कोई भी केस लाओ। जुडिशियल पावर्स हो चुकी हैं, मिलिट्री पावर्स हो चुकी हैं, वीटो पावर्स पे आ जाते हैं। इसका मैंने आपको पहले ही अभी एक्सप्लेन किया था, उनका बस नामकरण कर देते हैं। सो दीज थ्री पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने आपको इनका डेफिनेशन बताई थी, इनका नामकरण कर चुके हैं। विद होल्डिंग एसेंट, इट मीन्स मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जब ये बिल लेके पहुंचेंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट बोलेंगे या आई एम डूइंग समथिंग, जस्ट कीप इट ऑन माई टेबल, मैं इसको करता हूँ। और थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट साहब क्या बोलेंगे कि आई एम विद होल्डिंग माई एसेंट, ठीक है। मतलब मैंने इस बिल को पढ़ लिया है, मैंने देख लिया है, बट मैं इस पर कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई साइन नहीं देना चाहता। सो डेट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। ओवरऑल थ्रू एंड थ्रू मैं इस बिल पर्टिकुलर को रिजेक्ट भी एक तरह से नहीं करते, पर हाँ आप रिजेक्ट बोल दो, क्यों? क्योंकि विदहोल्ड कर रहे हैं अपनी एसेंट, ठीक है। तो अल्टीरियर मोटिव इज टू रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर बिल सो डैट दिस बिल विल कम टू एन एंड। ये अल्टीरियर मोटिव है, ठीक है, हिडन मोटिव। सो उसको अच्छी भाषा में लिख दिया बस, विदहोल्डिंग एसेट। सो दिस इज द केस ऑफ एब्सोल्यूट वीटो। द बिल हैज बीन कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट बट ही इज विदहोल्डिंग हिज एसेट। सेकेंड इज रिकंसिडरेशन। इट मीन्स the president has sent back this particular bill to the houses of the parliament or state legislature. So this is nothing but suspensive veto. For a period of time, this particular consideration of the bill by the president has been postponed. क्यों postponed? क्योंकि जैसे ही ये पार्लियामेंट के पास जाएगा and the parliament will boil in anger and send this bill back again to the president, then the president has to ratify it. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इन द केस ऑफ पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। सो डेट इज वाई इट इज कॉल्ड सस्पेंसिव वेटो, ठीक है। आपको नीचे एग्जाम्पल भी आए जा रहे होंगे, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एंड द थर्ड इज द पर्टिकुलर बिल हैज बीन टेकन टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। प्रेसिडेंट साहब इज डूइंग समथिंग एंड वो बोल देंगे ठीक है उसको उस टेबल पे रख दो, ठीक है। एंड विदाउट इवन कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर बिल, वो चुपचाप अपनी जेब में डाल लेंगे ताकि किसी को कुछ पता ना चले, एंड ही हिमसेल्फ डजंट नो द कंटेंट ऑफ द बिल, ठीक है। सो दिस इज नथिंग कॉल्ड बट पॉकेट वीटो, ठीक है। सो दिस पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं देखा उसके बारे में, बिल के बारे में, ठीक है, एंड जस्ट ही पुट्स इट इन हिज पॉकेट
ये मेटाफरिकली समझ जाइए। सो दिस इज नथिंग बट पॉकेट वीटो, और इसमें ये विदहोल्ड कर रहे हैं अपनी असेट। एक ही चीज़ को बस घुमा फिरा के बोल दिया गया है। क्यों? किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है? लॉयर्स ने, बिग पॉलिटिशियंस ने, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री बिल्स, ठीक है। बट दो इसमें एक्सेप्शन है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें वीटो पावर्स यूज नहीं की जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं, ठीक है। और जो मनी बिल है उसमें भी ये वीटो पावर्स एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कन्वेंशन। जब आप मनी बिल कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे पहले वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज़ मैंडेटरी टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट to lay that particular money bill in the houses of the parliament. So by convention, president will automatically sign it once the houses of the parliament will ratify this particular money bill. ठीक है. So these two exceptions are there regarding the veto powers of the president. गवर्नर में क्या डिफरेंस आएगा मैंने आपको वो भी बता दिया स्टेट लेजिस्लेचर्स में. इन पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर this reconsideration or suspensive veto can be overridden by the parliamentary procedure, but state legislatures don't command this authority to override this suspensive veto. ठीक है. So this is nothing but veto powers absorb this. The last is discretionary powers of the president. So in our constitution, this particular thing or heading is not explicitly present, but there are some situational discretions in which, और discretion होती क्या है कि हम अपनी choice से कुछ कर पाए. We have provided with two choices and we can opt for any of the choices presented before us. So this is nothing but discretion. So situational discretion has been presented in the constitution, but there is no particular heading or explicitly written of this particular term in our constitution. ठीक है. So there are some things like if the PM dies in office and the president is judging the situation that the party don't have any specific leader जो अभी PM बन सकता है. So in that particular case the president can dissolve the house. क्यों? For the fresh elections, or can call any party member of other house कि भैया please you will become the PM of India and please prove your majority in the houses so that आपकी लेजिटिमेसी आ जाएगी टू एक्वायर दिस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ पीएम. ठीक है. तो ये कुछ चॉइसेस हैं प्रेसिडेंट के पास कि वो डिसॉल्व भी कर सकता है हाउस फॉर द फ्रेश इलेक्शंस एंड ही कैन इनवाइट सम अदर अपोजिशन पार्टी मेंबर या बिगेस्ट पार्टी मेंबर जो भी बिगेस्ट पार्टी है आफ्टर दिस रूलिंग पार्टी उनके लीडर को इन्वाइट करेगा कि सर प्लीज़ यू विल फॉर्म योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड provide or win the confidence motion in the houses of the parliament. ठीक है. If the COM has lost the confidence motion in the Lok Sabha तो क्या होगा? In any other case, President shall act on the aid and advice of the council of minister. उनके बिना वो कुछ नहीं कर सकता. जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो भी
काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही पावर है, बिकॉज प्रेसिडेंट shall only act on the aid and advice of council of minister. It means president can never stand alone in the parliament. पार्लियामेंट में आप मैंने बताया कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, बट प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ईदर ऑफ द टू हाउसेस. ठीक है. सो प्रेसिडेंट अगर ऐसा अकेला खड़ा है तो विद रिगार्ड्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट नहीं है. इसको हमेशा एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है. डेट इज़ नथिंग कॉल्ड बट COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. ठीक है. बट मान लीजिए ये COM कब तक है? जब तक दीज आर एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक. किसकी पब्लिक? इंडिया की पब्लिक. बट इफ दिस पर्टिकुलर नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन प्रेजेंटेड एंड पास्ड इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा, so it means the council of minister has lost its majority in the lower house. पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ COM ओनली, और ये COM तो वो होता है विच इज एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक. बट दिस पर्टिकुलर COM विच इज द इनकम्बेंट COM हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन पब्लिक. So it means now a situational discretion is there with the president. अगर ये COM बोले भी, अगर PM और COM बोले भी कि प्रेसिडेंट साहब प्लीज डिसॉल्व द हाउस, सो इट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द हाउस और इनवाइट एनी अदर पार्टी लीडर. ठीक है. सो सच काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हैज बीन लेड आउट इन अवर लक्ष्मीकांत बुक. 2, 3 या 4 और हैं, तो इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है. ऑर्डिनेंस से लेके मैं एक और केस बता देता हूँ आपको, DC वाधवा केस. सो पता है आपको इंडियंस आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. तो क्या हुआ जब इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123, इसको हमने रखा था फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस, कि वेन एवर देर इज नो लॉ इन अ पर्टिकुलर स्फीयर एंड we are in a dire need of we are in an emergency situation and we are in dire need for a promulgation of particular law, और वो बहुत in speedy manner. Only in that period of time this particular ordinance clause will be used. But as the Indians are very street smart, और हमारे politicians तो हैं ही भगवान, तो उन्होंने क्या किया, today a particular ordinance will be passed. ठीक है. जैसे ही 6 months प्लस 6 weeks हुए, 5 weeks हुए, क्या किया प्रेसिडेंट ने? खुद से प्रोक्लेमेशन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया. सी, इफ वंस द प्रेसिडेंट हैज बीन प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस, सो 2 things कैन बी देयर. या तो पार्लियामेंट ही उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को क्वेश कर सकती है, द पार्लियामेंट हैज दिस पावर. एंड सेकेंड थिंग, प्रेसिडेंट इटसेल्फ कैन क्वेश इट्स प्रीवियस प्रोमलगेशंस और ऑर्डिनेंसेस. कैसे करेगा? कुछ नहीं करेगा, एक और ऑर्डिनेंस बोलेगा कि पिछला वाला ऑर्डिनेंस कैंसिल हो गया, खत्म. ठीक है. सो इंडियन पॉलिटिशियंस आर डूइंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ चीटिंग. टुडे द ऑर्डिनेंस हैज बीन पास्ड इन 6 months 5 weeks. द प्रेसिडेंट इटसेल्फ क्वेश इट्स ऑर्डिनेंस. ठीक है. अब क्या हुआ? ठीक है, पार्लियामेंट ने डिस्कस कर लिया, देन पार्लियामेंट अगेन गोज इनटू रिसेस. तो बाद में वापस वही ऑर्डिनेंस, द सेम ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस 1, द सेम ऑर्डिनेंस विद द सेम प्रोविजंस हैव बीन पास्ड अगेन, और फिर वो 6 months 6 weeks चल रहा है. सो दिस इज काइंड ऑफ circumnavigating द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट. सो in this particular DC Wadhwa case, the Supreme Court held that this particular cheating or process is against the constitutional values. Understood? So these are all about the president. In next class we will jump to the vice president, और ऐसे से करके हम पूरे यूनियन एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट करेंगे. So if you are gaining some knowledge with these kind of videos, so please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए goodbye, thank you.